So in the previous class, we have discussed in detail about potential. Those who attended offline class also would have practiced a lot about potential. Recapping again, potential of any point in an electric field tells us कि उधर तक लाने के लिए हमको उसमें कितना वर्क करना पड़ा. It also in turn also means how much energy would the charge have in the electric field. ठीक है. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें चार्ज को मूव कराने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगा रही है और उसके अगेंस्ट मूव करा रहे हैं हम तो हमको वर्क करना पड़ेगा. तो इन्फिनिटी से लेके किसी पॉइंट तक लाने के लिए हमको जो वर्क करना पड़ेगा उसको कहते हैं पोटेंशियल. टू डिफाइन वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट. The SI unit of potential is volt, denoted by V, and और क्या formula V equals to W by Q, where W is the work done to bring Q amount of charge, right? Everybody clear? TM in this, tell me what potential is. So the potential is the work done. क्या work done? कोई भी work done. Work done by the object. Which object? बोलो ना अभी इतना लंबा definition दिया. अरे वीडियो क्यों ऑफ कर लिया भाई? नोट्स लिखा है, नोट्स में देख के बोलो. मैं go grab my notebook. हाँ? मैं go grab my notebook. फिर अभी क्लास है ना तो नोटबुक तो ग्रैब करनी पड़ेगी भाई. Shana will tell me what potential is. Potential energy is when the energy is not used yet, and yeah. Not asking about potential energy, man. I'm asking you about electric the definition that I just gave. I just gave a definition. It's the work done when a unit positive charge is moved from infinity to a point. ये तुमने बुक से पढ़ा है, ये मैंने नहीं लिखा है. Yes, sir. Where is your notes? Work done to bring 1 coulomb charge from infinity to a point in an electric field is called potential of that point, and it's denoted by V is equal to W upon Q. तो आप अपने खुद से बोलो ना. Okay. बिना देखे बोलो खुद से. I'll just read. Everybody put it on chat. Tell me the definition of potential on chat. और थोड़ा खुद से करने की कोशिश करो यार. मैं बार बार सिर्फ यहीं पे पढ़ोगे क्या? यहाँ पढ़ा दिया, घर पे जाके रिपीट करो खुद से, नहीं तो नहीं बनेगा एग्जाम में. Those who had attended offline class, I hope that you guys remember it properly. Vedant, correct, but also give me the SI unit and formula related to potential. गौतम करेक्ट, SI यूनिट नहीं लिखा. खुद से लिखना है भाई, देख के मत लिखना. वेदांत, गौतम, शना, समृद्धि, सृजक, पार्वती, आशका. ठीक है, 7 people. यहाँ पे है कितने?
9 लोग हैं, 2 लोग बचे हुए हैं। जल्दी भेजो भाई, 2 लोग बचे हुए हैं। टिया एंड क्रिसल, फॉर्मूला भी लिखो टिया, और देख के मत लिखो, सब खुद से लिखो। क्रिसल रॉन्ग, check the notes and write properly. तुमने लिखा work done to bring a coulomb containing positive charge. So coulomb is not a vessel. Coulomb by itself is the measure of charge. So 1 coulomb charge को लेके आते हैं जब हम infinity से to a point. That's that word. ठीक है, anyway. अब मुझे बताओ, everybody put it on chat and tell me, will a positive charge move from higher potential to lower potential or lower to higher? Ashka correct. Gautam correct. Parvati correct. Tia correct. Krishna correct. Vedant correct. Shana correct. Srija correct. कौन बचा? कोई एक बचा है. Anyway, आंसर देना कि a positive charge moves from higher potential to lower potential. All right. So now today we are going to talk about that movement. So when the charges move, it's called current. So today we're going to talk about that. We're going to learn more about that. Okay. All right. So suppose this is a battery. Okay. इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल. तो जो पॉजिटिव होता है वो ज्यादा पोटेंशियल होता है, नेगेटिव वाला 0 पोटेंशियल होता है, कम पोटेंशियल होता है. तो सपोज दिस इज एट 5 वोल्ट, दिस इज एट 0 वोल्ट, राइट. दिस इज हायर पोटेंशियल, तो यहाँ से चार्ज निकलेगा. तो चार्ज निकलने के लिए और जाने के लिए उसको हमको एक वायर देना पड़ेगा, समथिंग दैट कैरीज दैट पर्टिकुलर चार्ज. तो ये वायर है, कंडक्टिंग वायर. ठीक है. सो दिस विल टेक द चार्ज एंड टेक इट ब्रिंग इट हियर. लेकिन यहाँ पे जो चार्ज निकल रहा था, इसके पास ज्यादा एनर्जी थी, 5 वोल्ट के हिसाब से एनर्जी थी इसके पास. यहाँ पे इसके पास 0 एनर्जी है. तो यहाँ पे बीच में कुछ ऐसा डिवाइस डालना पड़ेगा जहां से एनर्जी डेसिपेट हो जाए. ठीक है. ओके. तो ये जो डिवाइस है जहां से एनर्जी निकलती है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टर. ये जो डिवाइस है, जो रेजिस्टर, इसमें लिख देते हैं डेसिपेट्स एनर्जी. ठीक है. ये है बैटरी और सेल. इसका काम है मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. और ये है वायर, कंडक्टिंग वायर. दिस कैरीज करंट. करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस. ठीक है. तो ये लिख लो. डन. डन.
हो गया? Sir, just a minute. Okay. Done? Guys, respond. नहीं हाथ मत उठाओ, आप तो ऐसे ही बोल दो भाई। हो गया क्या? Yes, sir. चलो अब देखो ध्यान से, ठीक है? चैट में क्या भेजा किसी ने? चैटान भेजा। अब ये बैटरी है, ठीक है? यहां से हमने एक वायर निकाला, ये वायर निकला ऐसे। तो अब इस वायर के थ्रू क्या होगा? ये चार्जेस फ्लो करेंगे ऐसे ऐसे, राइट? बहुत सारे चार्जेस, है ना? तो हमको कैसे पता चलेगा कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं? तो हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, ये यहाँ पे इतने पार्ट पे, और ऐसे जैसे हम पाइप के थ्रू उसको काट देंगे बीच से और देखेंगे कि कितना चार्ज फ्लो हुआ 1 सेकंड। तब हमको उससे पता चल जाएगा कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, राइट? गेटिंग इट? तो ये जो इस येलो चीज के थ्रू जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड, Q flowing through the cross section in 1 second is current. करंट का मतलब हुआ कि यहां इस पर्टिकुलर, अगर हमने ऐसा पाइप बनाया है, ये वाला पाइप, तो ये क्रॉस सेक्शन हुआ ना ये वाला, तो दिस इज दैट येलो क्रॉस सेक्शन दैट वी मेड, ये गेट इट? तो यहां से कितने चार्जेस निकल रहे हैं Q इन 1 सेकेंड, दैट इज करंट। सो करंट की डेफिनेशन अब लिख लेते हैं। व्हाट इज करंट? करंट इज amount of charge flowing through a cross section in 1 second, ठीक है? Denoted by I. SI unit is ampere. Formula
I equals to Q by T. अगर T टाइम में Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा, राइट, सो I is current, Q is charge flown in T seconds. तो अगर T सेकेंड में Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ तो 1 सेकेंड में कितना होगा, Q अपॉन T, तो वो हो गया उसका फॉर्मूला, ठीक है। Charge flowing through a cross section in 1 second, it is denoted by I and this is ampere. जो ड्रॉ किया मैंने सब कुछ करो ठीक से, अच्छे से ड्रॉ करो, और उसके बाद हाथ उठा लेना जब हो जाए तो। So can you tell what you have written the meaning of I? What? The meaning of I in the formula? What is I? So वो पढ़ने नहीं आ रहे. नहीं, बट है क्या I? What is I? अभी क्या लिख रहे हैं हम, किसके बारे में लिख रहे हैं? Current. करंट, और फिर मैंने लिखा डिनोटेड बाय I, तो I क्या होगा? हाँ बताओ। Current. हाँ, Gautam, Tia and Parvati are pending. Done? गौतम, टिया एंड पार्वती, जल्दी बताओ। Yes, sir. उठा लो, हाथ उठा लो। समझ गई। क्या? जल्दी जल्दी। यस सर। ओके, अभी तक मैंने सर्किट, इसको जो पूरी चीज होती है उसको सर्किट कहते हैं, तो सर्किट में क्या क्या होता है वो सब बताया अभी, राइट। क्या क्या होता है सर्किट में? एक वायर होता है, बैटरी होती है, लाइट रजिस्टर होता है ना। तो टिया मेंजेस, बैटरी का क्या काम होता है? मैंने अभी बताया था, सब कुछ लिखाया था। बैटरी का क्या काम होता है? The battery maintains the potential difference. वायर का क्या काम होता है? The conducting wire, हाँ, it carries the current. और रजिस्टर का क्या काम होता है? It displaces energy. डिस्प्लेसेस नहीं, डेसिपेट्स, क्योंकि वो जो sorry. चार्जेस हैं वो एनर्जी लेके चल रहे हैं, तो वो एनर्जी हमको अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म करनी है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और में कन्वर्ट करना है। जैसे फैन लगाएंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बल्ब लगाएंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी?
बल्ब लगाएंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? टिया मेंजेस, आई एम आस्किंग यू, वेयर इज योर वीडियो? टिया मेंजेस, Yeah, sir. बल्ब लगाने से, बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी डालते हैं, बल्ब से कौन सी एनर्जी निकलती है? Electrical energy. वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाल रहे हैं ना बल्ब के अंदर भाई। बल्ब से निकलता क्या है? Light. हाँ, लाइट। Light. तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई ना, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी हो गया ना। हाँ, Yes. ओके। आर्यन राजेश, व्हाई सो लेट? Tia means remain on video. Don't switch off your video. It's very irritating to keep asking the same thing again. Don't put off your video, Tia. Aryan Rajesh, why are you so late? Aryan Rajesh, are you there? Aryan? कंप्यूटर इशू सर, माइक isn't working. अरे भाई तो फिर क्लास में सब चीज प्रिपेयर करके आओ ना. How do I then interact with you? How do I ask you any question? मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें भाई. ठीक है, चलो तो पहले बैटरी को लेते हैं. यहाँ पे ये दिख रहा है बैटरी. बैटरी का क्या काम है? 9 वोल्ट का पोटेंशियल मेंटेन करना है इस वाली बैटरी. ठीक है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है? ये वाला कि ये वाला? एवरीबॉडी से इट ऑन माइक. राइट साइड की लेफ्ट साइड, कौन सा पॉजिटिव है इसका? राइट साइड. Right. हाँ, राइट साइड, क्योंकि इसमें निकला हुआ है ना ये, तो वो पॉजिटिव हो गया. ठीक है, अब इसमें कंडक्टिंग वायर लगा देते हैं. चलो वायर लगा दिया हमने, है ना. अब क्या करेंगे? इस वायर, इतने वायर से हो जाएगा? नहीं, अब हमको इसमें क्या लगाना पड़ेगा? बल्ब लगाएंगे, है ना. चलो बल्ब लगा देते. अब बल्ब को क्या करेंगे? बल्ब को ऐसे और वायर से ऐसे जोड़ना पड़ेगा. इसमें जुड़ गया, और ये वाले वायर को उठा के इसमें लगा देते, है ना. नाउ यू सी व्हाट इज हैपनिंग. जैसे ही कनेक्ट हुआ, करंट फ्लो होने लगा. पॉजिटिव से इधर जा रहा है करंट, बल्ब के अंदर गया करंट, वहां पे उसने लाइट एनर्जी डेसिपेट की. अब उसके पास करंट के पास जीरो एनर्जी बच गया, तो अपने जीरो एनर्जी के अंदर गया. फिर अंदर चार्ज हुआ, वो चार्ज मतलब उसमें अपनी एनर्जी उसने ली, फिर वापस निकला, फिर एनर्जी डेसिपेट किया, फिर वापस अंदर गया. क्लियर? अभी इसमें स्विच नहीं है अपने पास, स्विच भी लगा देते. चलो, ओहो, इसको कैसे करूंगा? तो होता नहीं है शायद. स्विच को क्या करना होता है? स्विच को बीच में लगा दो. तो पहले हम लगाएंगे बैटरी, फिर हम लगाएंगे एक वायर, और क्या लगाएं? कहाँ पे स्विच कहाँ लगाना चाहते हो तुम? कहीं भी लगा सकते हो, पूरे सर्किट में कहीं पे भी स्विच लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि स्विच एक बार ही ब्रेक हो गया तो सर्किट नहीं चलेगा. जैसे कि आप स्विच को भी यहाँ पे लगाते हैं. ठीक है, यहाँ पे लगा दो. अब यहाँ पे हम लगा देते हैं बल्ब, फिर यहाँ पे लगा देते हैं वायर. अब मैं इस वायर को इसमें कनेक्ट करूंगा तो फ्लो होंगे चार्जेस? हाँ नहीं, जल्दी बताओ. No, because the switch is off. हाँ, इट वोंट फ्लो, क्योंकि अभी स्विच कनेक्टेड ही नहीं है, तो नहीं हो रहा. देखो, क्योंकि इधर ब्रोकन है, No. नहीं जा सकता. लेकिन अगर इसको हमने किया कनेक्ट तो हो गया. अब तुम्हें दिख रहा है ये उल्टा, यहाँ पॉजिटिव से निकलना चाहिए था, लेकिन अभी इस बार ही करंट उल्टा क्यों चल रहा है? कौन बता सकता है करंट उल्टा क्यों चल रहा है? अभी करंट उल्टा चल रहा है क्या? कोई बता सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. तो इस केस में मैंने क्या बोला था? करंट पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में जाता है. कौन सा करंट? क्या करंट? करंट इज चार्जेस, राइट.
तो कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन असली में पॉजिटिव चार्ज भी मूव कर सकता है, नेगेटिव भी मूव कर सकता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज को इधर से निकलना चाहिए तो नेगेटिव चार्ज इधर से निकलना चाहिए, राइट? सो कन्वेंशनल करंट, ये जो मैंने दिखाया कन्वेंशनल करंट इज अबाउट पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है तो वो पॉजिटिव के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, तो वैसे ट्रैवल करेगा। इज एवरीबडी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? ठीक है। Yes, सर sir. एक बार फिर से बता सकते हो? तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन वेयर इज पॉजिटिव चार्ज मूविंग। लेकिन चार्जेस दो टाइप के हो सकते हैं ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अभी देखो इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो कौन सा चार्ज है? नेगेटिव सर। नेगेटिव। लेकिन कई जगह पे पॉजिटिव चार्जेस, जैसे कि पॉजिटिव आयोन मूव कर सकते हैं, है ना? Na2+ आयोन मूव करेगा अगर, तो वो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो हम करंट का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ने किस डायरेक्शन में मूव किया। तो अगर पॉजिटिव ने इधर मूव किया तो नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन उसका ऑपोजिट होगा। यस सर। तो अगर हमको करंट इस डायरेक्शन में चाहिए कि पॉजिटिव से निकल रहा है, तो हमको इलेक्ट्रॉन्स ही अगर मूव कराने हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन मूव होंगे ऐसे। ठीक है? यस सर। गॉट इट पीपल? क्लियर? ओके। और ये दो चीजें होती है, ये वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस नापता है दोनों दो पॉइंट्स के बीच में, और एम मीटर जो है वो करंट नापता है। तो अगर मैं यहाँ पे एम मीटर डाल दूंगा बीच में, तो वो करंट मेजर करेगा। अब जैसे कि इस पे यहाँ पे मैं अगर डालूंगा तो दिखा करंट 0.9 एम्पियर करंट चल रहा है, तो ये करंट मेजर हो गया। अभी अगर मैं इसको बल्ब के अंदर लेके जाऊंगा तो कितना करंट दिखाएगा? बताओ। बोलो भाई, माइक ऑन करो, कुछ भी बोलो। 0.9 एम्पियर। हाँ एग्जैक्टली exactly, क्योंकि हर जगह तो सेम ही चार्ज आएगा ना, अलग थोड़ी जा सकता है। इधर एक ही वायर है तो उसमें सेम सेम ही चार्ज मूव करेगा। चार्ज कहीं पे भी बीच में रुक नहीं सकता। तो अगर यहाँ पे 0.9 है तो यहाँ पे भी 0.9 होगा, राइट? यहाँ पे भी 0.9 होगा, बल्ब के अंदर भी 0.9 होगा, हर जगह इसके अंदर भी 0.9 होगा, राइट? तो हर जगह 0.9 एम्पियर होगा, क्योंकि करंट सेम सेम ही होएगा सब जगह। क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर गाइस? Yes, sir. ओके। सो अगर एक सेकेंड में 5 इलेक्ट्रॉन्स ने ट्रैवल किया तो मुझे बताओ करंट कितना हुआ? एक सेकंड में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स ने ट्रैवल किया तो करंट कितना हुआ? आशका रॉन्ग। एक सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन ने ट्रैवल किया। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है? तुमको चार्ज अपॉन टाइम करना है ना। सृजा करेक्ट। सर क्वेश्चन फिर से रिपीट करो एक बार। एक सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन ने ट्रैवल किया तो कितना करंट हुआ उसमें, उस वायर में?
Cool. So Srijak correct, Vedant correct, Parvati correct, Samruddhi wrong, Aryan Rajesh correct. बाकी लोग? So can you repeat the question? I didn't know there was a question. If 5 electrons travel in 1 second, what is the current flowing in the wire? Ashka, Srijak, Vedant, Parvati, Samruddhi, Aryan, Crystal. Ashka अभी भी गलत है. Yes, sir. Yes, I had entered way too early. Just a moment. Crystal wrong. So what is Q? अरे वही तो बनाना है भाई, मैं पिछली क्लास में पढ़ाया था ना मैंने. अगर n number of electrons हैं तो Q is equals to what? Ashka correct, Gautam correct. Tia Menzies, why is your video still off? Tia, So by mistake it got off. I didn't realize. put it on. I said 5 electrons in 1 second, right? Which means current is equals to Q by T. इसमें से क्या क्या गिवन है? Q नहीं हमको पता, T गिवन. Q का मतलब है N into E minus हमको पता है, Q equals to N E minus upon T 1 second दिया हुआ. N कितना दिया हुआ? 5 electrons. और E minus की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 into 10 to the power minus 19 upon 1 is equals to 5 into 1.6 will be 8 into 10 to the power minus 19 ampere. ये आंसर हो गया. हाँ, क्लियर? ठीक है, Zoom is going to be off now. वापस से ज्वाइन कर लो उसको. Then we'll do some more questions.